हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो है अध्याय 3, जिसमें हम आज मॉडर्न वर्ल्ड 1 करेंगे यानी जो है आधुनिक विश्व 1 करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में मॉडर्न वर्ल्ड है तो ये सिलेबस जो है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, reformation. Reformation is the most important topic here. The Middle as a Catholic Church come to be associated with the superstitions and corruptions and greedy for money. There is a most important point here. The Middle Catholic Church come to be associated with the superstitions, corruption and greedy for money. Superstition is a peasant where is convinced by their church that is opposes their true cross. People were used to be play fee for see a piece of wood and true cross because it was the belief that acquired to the like that is a healing and the power. The church led is a more as emphasis on blind faith than to the reasons as it was a mean to be extract money from the devotees. All this change with there is coming for the resonances, and in the new spirit of resonance is nothing could be accepted. Do you know that it was in 1570 AD at the German priest is called Martin Luther is the first challenge there is the authority of Roman Catholic Church. The Martin Luther there is the most challenging given to the Roman Catholic Church. Why? According to the Bible was not only a surface of religious authority. He believed that is a salvation could be attained through the faith in a Jesus Christ, and instead having to the blind faith on a church. He protests against some aspects of church, such as the selling of position in the church, the issuing of the letter of the indulgences of work of charity to going on the crusade to be highest bibdo. And Luther had to the protection of the German princes is a primarily because of his desire to resize a church property. But on 3rd Jan 1521 was excommunicated by the Pope Leo X after the refusal to stop Britain against the church. The Martin Luther's view started to the Protestant Reformation in the West, and it is divided. Their Christians would be into be two. There are Protestant and Romans Catholic. According to him, Christians must be a relation by following Christ and not by the letter of indulgence. Thought the reform movement of England was the influenced by Lutheran idea. The English Reformations, according to the direct result of King Henry, is eight as he fought to devote his first wife, Catherine of Aragon. There is a picture here of Martin Luther.
there is a most important picture on your screen. There are Martin Luther. The Thomas Cromwell, there is a king as a chief minister, helped the parliament to be passed. The act is a restraint of appeal and the act of supremacy. It gave a royal headship to be a king over to the church. The king was allowed to marry any violence as a commoner. That's important. The Reformation proved to be a great upheaval. There is religions reveal of a reform. There is a moment also took place within the Catholic Church, and this now as the Counter Reformation. It is aim to be reduce our corruption as well as to improve the strength of Catholic Church. It began in Spain, whereas Ignatius is a loyal founded the Society of Jesus, and which stress upon a service of God. Charity, priestess, is a casted and is a missionary's work. There is a God, charity, and charity is a missionary work. The moment started by is a Lutheran Martha, is a Martin Luther is spread to other countries of Europe through their effort of King Henry is a aid to England, and Hertz is Joely and the John Calvin. That is the most important on this. यदि हम बात यहाँ पर करें धर्म सुधार की, देखिए धर्म सुधार में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया बहुत से लेखकों ने, बहुत से थिंकनरों ने। तो कहते हैं धर्म में सुधार होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि धर्म उस समय जो था एक नया रूप लेता जा रहा था। कहते हैं मध्यकालीन में कैथोलिक चर्च के आगमन को अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धन के लालच से जुड़ा माना गया, क्योंकि ये धर्म के सुधार के नाते जो है अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धन के लालच से जुड़ा माना गया, क्योंकि ये जो धर्म के सुधार के रूप में देखा गया, लेकिन काफ़ी हद तक जो है अंधविश्वास को भी फैलाया गया। अंधविश्वासी किसानों के चर्च द्वारा जो है आश्वस्त किया गया कि सच्चा क्रॉस उसके पास है, यानी अंधविश्वास जो है चर्चों ने किसानों के ऊपर दिखाया कि सच्चा क्रॉस जो है उनके पास है, और लोग सच्चे क्रॉस के रूप में लकड़ी के एक टुकड़े को देखने के लिए शुल्क का भुगतान करने लगे थे, क्योंकि यह मानना था कि पवित्र अवशेष में स्वास्थ्य करने की शक्ति होती थी। और ये जनरली आज के समय में भी देखा जाता है कि आज बड़े बड़े संत साधु जो होते हैं, बाबा होते हैं, उसके पीछे लोग जो हैं पागलों की तरह जो है अनुसरण करते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता वो नहीं जानते हैं। कहते हैं वास्तविकता उनकी कुछ और होती है और ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों के समक्ष भी ऐसी बहुत से जो है घटनाएं प्रस्तुत हुई है जो कि अंधविश्वासों को आँख खोल देने वाली थी, लेकिन फिर भी जो लोग अंधे की तरफ विश्वास करते जा रहे हैं और अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धन की जो है इस तरफ बहाए जा रहे हैं। तो कहते हैं आज के समय में कहते हैं विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास जो होती है गलत होती है। और ये बात उस समय किसानों पर भी जो है ये देखने को मिला, जो सच्चे क्रॉस के जो है देखने के लालसा में और स्वयं को स्वास्थ्य करने के फेर में उन्होंने बहुत से धन जो है चर्चों को जो है निछावर किए। अंधविश्वास पर अधिक जोर देता था ताकि यह श्रद्धाओं से अधिक पैसे जो है ऐंठ सके, क्योंकि अंधविश्वास तो जनरली सी बात है श्रद्धा, और श्रद्धा होने के कारण जो है आप आंख बंद किए ही सारे पैसे लुटा सकते हो। कहते हैं अगर कोई आपको हाथ देख के ये बता दे कि आपके जीवन में संकट आने वाले हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो आपको यही होता है कि ये संकट दूर कैसे होगा। और जब दूर करने की बात आपने पूछ लिया तो इसका मतलब आपने उसके जाल में आप फंस गए, और जाल में जब फंस गए तो आप जाल में फंसते ही चले जाओगे, क्योंकि कभी आपको इसके लिए बीमारी बताया जाएगा, कभी उसके रिगार्डिंग बताया जाएगा, और इससे जो है आपसे पैसे ऐंठते ही चले जाएंगे। आपने एक बात नोट किया है कि कहीं भी कोई बाबा का प्रचार उचार होता है तो उसमें आगे अकाउंट नंबर भी लिखते रहते हैं, तो मेन लालसा तो उनको पैसे की ही होती है, प्रवचन तो दूर की बात है। कहते हैं जो सच्चे बाबा होते हैं ना, वो प्रवचन जो है निःशुल्क देते हैं, अच्छे ज्ञान का देते हैं, और इंसान को वहाँ पर अकाउंट नंबर फ्लैश नहीं करते हैं। वो बंदा जो श्रद्धा होता है वो खुद ही उनका अकाउंट नंबर ढूंढ लेती हैं। तो ये आप सोचिए आज का ज़माना कहाँ तक बदल गया है, और ये आज के साथ पुराने कहते हैं 15वीं शताब्दी में भी इसी तरह के जो है अंधविश्वास हो रही थी। चर्च तक के जगह यह जो है सब पुनः जागरण के साथ
साथ बदल रहा था। पुण्य जागरण की नई भावनाओं में कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। क्या आपको पता है कि 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर नाम का एक जर्मन पुजारी ने पहले रोमन कैथोलिक चर्च को अधिकारों को चुनौती दी और उसके अनुसार बाइबल धार्मिक जो अधिकार का एकमात्र स्रोत था। उनका मानना था कि चर्च पर अंधविश्वास करने के बजाय यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई थी। तभी मार्टिन लूथर जो थे इसके प्रति जो है पुजारियों के प्रति काफ़ी इन्होंने अपना चुनौती दी। और ये बात सही भी था कि हम तो परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए। कहते हैं चर्च पे विश्वास करना कहाँ तक सही था, क्योंकि जो गलत रास्ते दिखाए जा रहे थे, कहते कोई भी चीज़ हो जो गलत रास्ता दिखाए वो सच्चा नहीं हो सकता है। परमात्मा तो हमारे दिल में वास करता है, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो हर स्थान पे है। तो ये मार्टिन लूथर ने इस बात को उजागर भी किया और इसकी चुनौती भी दी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसने चर्च की कुछ प्रथाओं का विरोध भी किया, जैसे कि सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को चर्च के पदों का तथा पोप जो है स्वीकृत पदों का बेचा जाना। अब देखिए उस समय जो था ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि प्रथाओं का विरोध करने का कारण भी था कि सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को चर्च के पदों का तथा जो है पोप स्वीकृत पत्रों का बेचना जाना। लूथर को जर्मनी के राजकुमारों का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि उसने उसमें चर्च की संपत्ति जब्त करने की इच्छा भी थी, परंतु उसके चर्च के विरुद्ध लेख लिखने से मना करने पर 3 जनवरी जो है 1521 को पोप लिए 10वें ने उसे धर्म से बाहर कर दिया। अब देखिए ये भी एक बहुत ही विचित्र दुर्घटना थी जो आपके समक्ष थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिख रहा होगा जो मार्टिन लूथर के थे। कहते हैं इनके विचारधारा बिल्कुल ही स्वतंत्र थे और हर अंधविश्वास के प्रति इनका जो है प्रारा चोट करते थे। लूथर के जो है विचारों के पश्चिम में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत की और ईसाई जगत के 2 भागों में बांट दिया। कहते हैं प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक में परिवर्तन हुआ। उसके अनुसार ईसाइयों की मुक्ति ईसा मसीह के बताए रास्तों पर चलने से मिलती है, न कि पोप स्वीकृत पत्र खरीदने से। देखिए ये बात सही है कि अगर हम किसी ईश्वर को मानते हैं, किसी परमात्मा को मानते हैं, तो उसके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ता है, ना कि हम कोई कागज़ का कागज़दाद खरीदते हैं और उसको हम पढ़ते हैं समझते हैं तो उससे होगा। कहते हैं जो परमात्मा है वो सच्ची बात ही करता है। परमात्मा कभी गलत चीज राहों पर किसी भी व्यक्ति को चलने के लिए विवश नहीं करता है, वो सदैव अच्छे रास्ता ही दिखाता है। और परमात्मा का जो रास्ता होता है धन दौलत लोभ माया काम क्रोध से परे होता है। इसमें न धन दौलत का कोई जगह होता है, न काम क्रोध का कोई जगह होता है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। और यही बात जो है मार्टिन लूथर ने भी अपने विचारधारा में रखा था। हालांकि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन लूथर के विचारों से प्रभावित था, परंतु यह वहाँ के राजा हेनरी 8वें के पत्नी जो है कैथरीन के तलाक देने के प्रयास से शुरू हुआ। राजा के प्रधानमंत्री थॉमस कैनवेल ने संसद में 2 कानून पारित करने में मदद की और ये थे अपीलों को रोकने का अधिनियम तथा जो है संप्रभुता का कानून। और इन कानूनों ने राजाओं के चर्च की शाही अध्यक्षता प्रदान भी की। इन कानूनों ने राजा को चर्च की शाही अध्यक्षता प्रदान किया और राजा को एक साधारण महिला अनवेलिन से विवाह करने की अनुमति भी मिल गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला। धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक जगत में उलट पुलट होने के कारण विसिद्ध हुआ। कहते धर्म सुधार तो हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ, इसे धार्मिक जगत में काफ़ी उलट पुलट देखने को मिला। कैथोलिक चर्च में एक धर्म सुधार आंदोलन अपने से शुरू हुआ, जिसे प्रति धर्म सुधार कहा जाता है। और इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करने और जो है कैथोलिक चर्च के जो है सुदृढ़ किया गया। और इसकी शुरुआत स्पेन में हुई, जहाँ इग्नाशियस आयल्स ने यीशु का समाज की स्थापना की। यानी देखा जाए तो इग्नाशिया में जो है आयल्स ने यीशु का समाज की स्थापना किया, जिसने पवित्र मिशनरी कार्य और दूसरे की मदद और ईश्वर की सेवा पर काफ़ी बल दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा थी। कहते जो आंदोलन मार्टिन लूथर ने आरंभ किया वह इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें जो हुलडेरिक क्वेलिस ने जॉन कैवेस के प्रयासों से पूरे यूरोप में फैल गया। तो कहते हैं कोई भी कार्य के लिए जो है कहीं ना कहीं से जो है शुभ आरंभ करने की आवश्यकता होती है।
और अगर अच्छा कार्य होता है तो जन जन पहुंचाने में हर एक व्यक्ति मदद अवश्य करता है। कहते हैं सिर्फ अपनी विचारधारा सच्ची होनी चाहिए, अपना विचार जो है अच्छी होनी चाहिए और हमारा कर्मनिष्ठ होना चाहिए। वो बातें ऑटोमेटिक जो है हर एक व्यक्ति तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का भी यही मकसद है कि बच्चों को सिलेबस समझ में आए, बच्चों जो है रट्टूबाज न बने, बच्चे जो है क्वेश्चन के पीछे दौड़ के सिर्फ जो है शब्दों को देखे, समझे, सोचे। तो इसी उद्देश्य से जो है यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर ने यहाँ पर ये प्रावधान किया है कि शब्द ही आपको नज़र आए, क्योंकि शकल देखने से कुछ नहीं होना है। आपका तो मेन उद्देश्य है शब्दों का ज्ञान करना, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम में शब्द ही लिखे जाते हैं और उसी से आपको जो है अंक प्राप्त होता है। देखिए ये शब्द आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए इस शब्दों को देखिए, सोचिए और इसके जो है अक्षरों को लिखिए। आज बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको वास्तविक अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है कि वो किस तरह से लिखे जाएंगे। और इसे तिरपान सेंटर जो है हमेशा जो है शब्दों को ही डिस्प्ले करता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। कहते हैं अगर दोस्तों ये बात सारी समझ में आई, अच्छा लगा, तो अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है अच्छी बातें फैलाने में कभी भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिचक जो करता है समझिए वो अच्छी बातों का अनुसरण कभी नहीं कर सकता। और तिरपान सेंटर कभी भी गलत बातों का अनुसरण नहीं करता है, सदैव अच्छे बातों का ही अनुसरण करवाया जाता है और आपको अच्छी बातें ही बताई जाती है। तो इसलिए अगर आपको जो है दिल है तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करने का, तो वो सभी माध्यम अपनाइए जिससे ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंच सके।